सो हेलो टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देयर विल बी 30 क्वेश्चंस एंड ऑल दीस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस टेस्ट सीरीज। Question number 1 we have, which of the following rights is or are being conferred on the citizen of India? So the right answer will be option D. All these rights are being conferred on the citizen of India. बच्चों conferred का मतलब क्या होता है? एक स्पेशल राइट देना, ठीक है? These are some special rights. Second, citizenship provisions of Indian Constitution is contained in. Answer will be option B. Part 2, Article 5 to 11. Question number 3. How a person can be citizen of India if he is born in abroad? अगर कोई इंसान abroad में born हुआ है तो वो कब citizen of India माना जाएगा, कब वो citizen of India बन सकता है? इसमें कुछ हमारे rules होते हैं. So the right answer will be option D. Father or mother is a citizen of India at the time of the person's birth. उस पर्सन के बर्थ होने के टाइम पे उसके फादर या मदर दोनों में से एक पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है? फोर्थ देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इम्प्लाइज। तो ये हमारी जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रिंसिपल है वो क्या इम्प्लाई करता है? सो इट इम्प्लाइज वन सिटीजन वन वोट, ठीक है? वन सिटीजन वन वोट। फिफ्थ आपको दे रखा है, विद व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल 5 to 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे आर्टिकल्स 5 to 8 किस सब्जेक्ट के ऊपर डील करते हैं? सो इट डील्स विद ऑप्शन बी सिटीजनशिप। बच्चों इस वाले सेट में मेनली हमारे सिटीजनशिप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट एट द एज ऑफ, वेरी इजी, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट एट द एज ऑफ 18. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किस तरह की सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जाती है? सो हमारे यहाँ पे कौन सी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है? सिंगल सिटीजनशिप. 8 क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज द पावर टू रिमूव द गवर्नर ऑफ द स्टेट? गवर्नर ऑफ द स्टेट को रिमूव करने का अधिकार किसको है? So president has the power to remove the governor of the state और वही उनको अपॉइंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. What is the tenure of chief minister? हमारे सीएम का टेन्योर कितना होता है? So it is for 5 years, ठीक है? 5 years the tenure of chief minister. क्वेश्चन नंबर 10. What is the normal term of governor's office? यहाँ पे भी आपको गवर्नर के ऑफिस का टर्म बताना है. So it is for 5 years. 5 years is the normal term of governor's office. Question number 11. According to the Constitution of India, who is the head of state government? State government का head कौन होता है हमारे Constitution of India के according? So governor is the head of the state according to our Indian Constitution. Question number 12. Who is responsible for answering all questions in the assembly? So who is responsible? So option A. Chief Minister is responsible for answering all the questions in the assembly. Next question देखते हैं. The Constitution gives the power of superintendence over all subordinate court to the high courts under which article? Under 227 article. So Article 227 gives the power of superintendence. Question number 14. The high courts in India were first started at. ये काफी इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? So high courts in India were first started at Mumbai, Chennai and Kolkata. Question number 5. Which of the following high courts has jurisdiction over a union territory? इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास the following high courts has jurisdiction over a union territory? अब कौन सा हाई कोर्ट है ऐसा? The right answer will be option A, Calcutta. So Calcutta High Court has jurisdiction over a union territory. Question number 16. An addendum stay means. An addendum stay means, बताइए क्या होता है? It means, so it means in the meantime. In the meantime. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा ले. 17. The term of governor is. गवर्नर का टर्म कितना होता है? I think ये क्वेश्चन ऊपर भी था. So it is for 5 years. ठीक है? For 5 years. 18 क्वेश्चन देखते हैं. In assembly, who is responsible for explanation of government policies? So what will be the right answer? Option C, Chief Minister. Chief Minister is responsible for explanation of government policies. Question number 19. Who is spokesman of the state government? State government का spokesman किसको माना जाता है? Again, Chief Minister. So Chief Minister is the spokesman of the state government. Question number 20. The first governor ever to be dismissed by the president was.
ऐसे कौन से पहले गवर्नर थे जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया गया था? सो ही वॉज ऑप्शन ए, प्रभुदास पटवारी। क्वेश्चन नंबर 21, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, गवर्नर को भी यही अपॉइंट करते हैं एंड हमारे हाई कोर्ट के जजेस को भी। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब यहाँ पे आपको बताना है किसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करता। सो काफी इजी है, ऑप्शन डी, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर्स को हम इलेक्ट करते हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वाज द हाई कोर्ट फर्स्ट, इन विच ऑफ द ईयर वाज द, यहाँ पे होना चाहिए द फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। तो फर्स्ट हाई कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1861। और कौन सा हाई कोर्ट था? इट वाज कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, एंड ये फॉर्मली 1 जुलाई 1862 को ओपन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स इज प्रोहिबिटेड अंडर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 20, ऑप्शन डी, आर्टिकल 23 डील्स विद द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। क्वेश्चन नंबर 25, आरटीई एक्ट कवर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन? जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो कौन से एज ग्रुप को कवर करता है? सो इट कवर्स एज ऑफ 6 to 14 years. Question number 26, child labor is prohibited under which article? So it is prohibited under article 24. Next question देखते हैं, the ultimate powers of interpreting the constitution of India lies with the, it lies with the Supreme Court. So ultimate powers of interpreting the constitution of India lies with the Supreme Court. An institution where disputes between citizen and the government are finally settled is the ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। ये अगेन इसी वाले क्वेश्चन का दूसरा वर्जन है, ठीक है, इससे रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 29, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय? सुप्रीम कोर्ट के जज को किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? सो इट इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा एड्रेस किए जाने के बाद प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर? आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन द कंट्री एज ऑफ जैन 2015? 2015 तक कितने हाई कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में? सो स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल 24 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री टिल 2015। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस पॉलिटी के। तो सभी को अच्छे से तैयार करना, ठीक है, सभी को अच्छे से याद करना एंड काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।